अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके काहना में पुलिस कांस्टेबल को मुबैना तौर पर उसके वालिद और बहन ने तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया। काहना पुलिस ने कत्ल की दफाहत के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुद्दई इस हवाले से क्या कहते हैं, किस बात पे बेटे का अपने बाप और बहन से झगड़ा चल रहा था, ये जानने की कोशिश करेंगे। तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है और हमारे नुमाइंदे जिन्होंने इस स्टोरी को कवर किया था उनसे भी जानेंगे कि असल मुहर्रिकात क्या हैं और ऐसे वाक़यात क्यों कर हमारे माशरे में रूनुमा हो रहे हैं। हमारे नफ्सियात से भी जानने की कोशिश करेंगे। कान्हा के इलाके में पुलिस कांस्टेबल अपने घर से पैसे निकलवाने के लिए गए और रास्ते में जब वो अपनी प्लॉट की जानिब गए तो वहाँ पर उनकी अपने ही अहले खाना के साथ किसी बात पर तलफलानी हो गई और वहाँ पे होने वाले झगड़े के नतीजे में उनका इंतकाल हो गया। मुर्सा की जानिब से कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जबकि मुकदमा जो है वो मकतूल के वालिद और बहन के खिलाफ दर्ज हुआ है और मुकदमे की मुद्दइया जो हैं वो मकतूल की बीवी बनी है। क्या ये कत्ल है या वो हादसाती तौर पर फौत हुए हैं, तमाम तफसीलात जानने के लिए मकतूल की बीवी और दीगर रिश्तेदार जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे जानते हैं। बाजी की होया तुसी किहदे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਔਰ ਉਸकी ਭੈਣ ਹੈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਰ ਤੇ ਨੰਦ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ? ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। क्या थे? ਸਿਪਾਹੀ थी। और कौन से थाने में तैनात? टाउनशिप। उस दिन क्या हुआ, घर से क्या कह के वो निकले? ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਉਰਾ ਪਰਾ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਲਾਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਆ ਅਸਲ ਪਲਾਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਪਰਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਣੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਥਾਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਥਾਪੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਦਵਾ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੇ ਜੱਫਾ ਭਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਕਸਰ ਝਗੜਾ ਝੂੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਰ ਤੇ ਨਨਾਣ ਰਹਿ ਰਹੇ? 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ। 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੇਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਸੋ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ 6.5 ਲੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਇਹ ਲੈ ਲਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਉਲਨ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਖੂ ਲਏ ਸੀ, ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਛਾਣ ਦੇ। ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਹਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਲਾਟ ਪਿਛਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ? ਹਾਂ, ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਝਗੜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈਏ ਬਸ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਰ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਝਗੜਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਚਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਡਏ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਯੂਸਫ ਦੀ ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਲੜਾਂ ਝਗੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਏ ਸੀ ਪਾਪੜ ਪੂਪੜ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਕੋ, ਹੁਣ ਆਦਾ ਸਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੜ ਪੂਪੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ, ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਟੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਨਨਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਨਨਾਣ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂ, ਸੁਸਰ ਨਾਲ, ਸੁਸਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਧੀ ਮਾਰਦੀ ਦੀ ਪਿਓ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 38 ਦਿਨ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਹੈ? 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। 15 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮਕਤੂਲ ਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਭਾਂਜਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਕਾਲ ਆਈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਧਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਨੇ ਥਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਤਵਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵਾਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ 3 ਵਾਜਾ ਇੰਜਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹੈਡ ਦੀ ਇੰਜਰੀ, ਨੈਕ ਦੀ, ਗਰਦਨ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਤੇ ਚੈਸਟ ਦੀ ਇੰਜਰੀ, 3 ਵਾਜਾ ਇੰਜਰੀਆਂ ਸਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਅੱਗੋਂ ਸਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ। ਸਰ ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਨੋਟ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਨੋਟ ਪੈਸੇ ਭਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਨੋਟ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਲਾਉਣ ਡਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲकुल ਲੈ ਰਹੀ है। आप अभी बता रहे थे कि चशमदीद गवाह भी है, देना बाजी उन्होंने, वो उसने क्या देखा, वो क्या बताता है आप लोगों को, और वो कौन है? चशमदीद वारिस अली है, ये साथ ही उसका घर है सर। उसने देखा है सर, उसके सामने बिल्कुल एसपी मारा है, पीएसपी ऑफिसर है, उनके सामने उसने बयान दिया, कसम खा के, खुदा की कसम खा के उसने कहा जी मेरे सामने मैडम इसने मारा। लेकिन वो मैडम मान ही नहीं रही। मैडम क्या कहती है? मैडम कहती है ये कॉज ऑफ डेथ ये नहीं है। तो क्या है कॉज ऑफ डेथ? उसने क्या कॉज ऑफ डेथ वो कहती है हार्ट अटैक से मरा। अगर बंदे को 7 गोलियां सर लगती है, 7 गोलियों से भी बंदा नहीं मरता। जब उसके शरीयाने प्रेशर बढ़ेगा खून का, फिर ही डेथ होनी है। हर डेथ के साथ लगता है, यानी कोई भी डेथ हुई है 7 हार्ट अटैक की रिपोर्ट लाजमी लिखा होता है सर।
तो चशमदीद गवाह ने, जब आप कह रहे हैं कि एसपी के सामने भी बयान दिया, तो उसने नीचे तफ्तीशी वगैरह को भी बयान दिया होगा जी। वो मोहल्लेदार है आप लोगों का, वो क्या लगता है सर वो साथ ही मोहल्लेदार ही है। और वो करता क्या करता सर वो पुलिस में वो भी पुलिस में? जी सर। यानी मरने वाला भी पुलिस में है और जो आप लोगों के मुकदमे का चशमदीद गवाह है वो भी पुलिस में, लेकिन पुलिस दोनों की, यानी आपके कत्ल का आपके मुताबिक जो कत्ल हुआ है उसके केस को भी नहीं देख रही और कोई हैंडल नहीं कर रही सर पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, यानी कि उनको इल्तवा पे छोड़ दिया। कम से कम कोई अगर इस तरह कोई फायर खाली फायर कर देना 4 महीने तक जेल काटता है, तो ये कत्ल करके सर 4 महीने जेल नहीं काट के आए, ये 10 दिन के बाद रिहा कर दिए गए। चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਮਕਤੂਲ ਨਾਲ? ਇਹ ਮਸਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਹਮਸਾਇਆ कैसा ਸੀ? कैसी रेपुटेशन ਸੀ? ਸਹੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹਸੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਣਦੇ ਰਵੀ ਦੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਵਾਰਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਵਾਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਵਾਰਸ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ। अब आप क्या बाजी ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੀ? अच्छा कत्ल होने वाले जो आप लोगों का चशमदीद गवाह है वो आप लोगों का रिश्तेदार भी है? हाँ जी रिश्तेदार। तो फिर तो आप लोगों का उनका भी रिश्तेदार होगा। ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਰ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਵੇ। आप मरने वाले के गुस्सा की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो खुद भी पुलिस एहलकार थे और टाउनशिप थाने में तैनात थे। इनका कहना है कि जो चशमदीद गवाह है वारिस, वो भी पुलिस एहलकार और उसे अपनी आंखों से ये सारा कुछ देखा और उसने आला अफसरान को भी इस हवाले से बताया है कि वहाँ पे झगड़ा हुआ और जो मरने वाला है उसकी बहन और बाप ने उसके ऊपर हमला किया जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन इनका शिकवा है और इनका इल्ज़ाम है कि एक तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, दूसरा इल्ज़ाम यह है कि पुलिस ने पैसे लेकर केस को दबाने की कोशिश शुरू कर दी थी। हमारे नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये ना सिर्फ मौके पे गए थे बल्कि अस्पताल और थाने को भी ये मुसलसल फॉलो करते रहे थे। ज़फ़र इकबाल साहब से जानेंगे कि इन लोगों के बारे में क्या पता चल सका है और मुलज़िमों का क्या स्टेटस है और जिस तरह से मुदई जो है वो पुलिस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है और इस हवाले से उनके पास क्या तफसीलात है। ज़फ़र साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि वक़ुआ क्या आपको पता चला था, फिर आपने क्या मौके पर जाकर देखा और किस तरह से तफ्तीश अभी चल रही है, तफ्तीशी अफसरान वगैरह क्या कहते हैं? उमर भाई इसमें ऐसा था कि ये जो है जो जांबाक हुए यूसुफ साहब, हमें इतला मिली थी कि पुलिस मुलाजिम जो हैं वो जी ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें ज़ख्मी करने वाले जो इल्ज़ाम था उसके वालिद साहब और बहन थी, जिसके बाद ज़ख्मी को ले जाया गया सेंट्रल अस्पताल, तो वहाँ डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी कि ये तो जांबाक हो चुके हैं। जिसके बाद मकतूला के शोहर की मुदीयत मकतूल की जो है उसकी बीवी की मुदीयत में मुकदमा दर्ज हो गया। उसके मकतूल जो था उसके बाप और बहन की खिलाफ, जिसके बाद पुलिस ने उनको शामिल तफ्तीश किया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें पुलिस जो कहती है वो ये कहती है कि उसमें डेथ जो है वो इस वजह से नहीं हुई, लेकिन असल जो इंतज़ार है पुलिस को वो फोरेंसिक रिपोर्ट का है।
उसके बाद पुलिस ये कहती है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद बाकायदा हम मुलजमों को चोटें कहाँ पे आई, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? इब्तदाई रिपोर्ट में तो यही बताया गया है कि 2 सर में चोटें, 1 गर्दन पे है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी उसमें टाइम लगेगा, आपको पता है। उसके बाद हम बाकायदा इसमें अगर तो ये मुलजम होते हैं बाकायदा गिरफ्तार करेंगे। मुद्दई जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुलजमों को पुलिस ने पकड़ के 10 दिन अपनी हिरासत में रखने के छोड़ दिया। तफ्तीशी से इस हवाले से आपकी बात हुई, वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, तफ्तीशी से हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट में क्योंकि ये काज ऑफ डेथ नहीं है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी फाइनल उसी के बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो नहीं, उनको बेगुनाह लिख दिया उन्होंने मुलजमों नहीं, को? अभी तक बेगुनाह नहीं है। उनका ये कहना है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट वो नहीं आएगी फोरेंसिक की, उसके बाद ही हम बाकायदा इसमें कह सकते हैं कि फिर ये तो गिरफ्तारी इल्तवा में रखी बिल्कुल तवा में रखा है अभी केस। वो कहते हैं जी ना तो ये अभी फारिग है इस केस में और ना ये मुलजम है, क्योंकि हम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक बाकायदा कार्रवाई होगी। लेकिन जो इसमें मुद्दई है खातून, उसका ये इल्ज़ाम है कि पुलिस मेरे साथ तामुल नहीं कर रही, दूसरे लोग बहुत सारे हैं, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा था इन पे जिस पे ये बाकायदा ये इंसिडेंट हुआ है, और इनके पास चश्मदीद गवाह भी है जिसने कि पुलिस को भी बयान दिया और है। वो भी पुलिस वाला है शायद? हाँ जी, वो भी पुलिस वाला ही है बिल्कुल। और उसने ये कहा है कि ये मेरे सामने तमाम इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अहले खाना जो है वो पुलिस की जो है तफ्तीश उससे मुतमईन नहीं है। उनका ये कहना है कि हम गरीब हैं, हमारे ही प्लाट को बेच के ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं और पुलिस इनके साथ साथबाज है। ये मुद्दइयों का इल्ज़ाम है पुलिस पर। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती फोरेंसिक की, उस तक हम इंतज़ार में हैं अभी। उसके बाद ही हम देखेंगे कि ये आया मुलज़म है या नहीं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ तो डिटर्मिन कर दी गई है कि 3 चोटें लगी हैं सर पे और गर्दन के ऊपर, लेकिन मौत की असल मुहरिकात जो हैं, वजह मौत जो है वो उसके अंदर वाज़ेह नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से स्पेसिमेंस जो हैं वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे गए होंगे। ये अमूमी तौर पर यही जो तरीक़ाकार है होता है कि अगर पोस्टमार्टम के अंदर असल मौत की वजह ना आए तो फिर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की जो है वो मदद ली जाती है और वहाँ पे स्पेसिमेंस भेजे जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि असल मौत की वजह क्या है। साथ ही जिस तरह से मुद्दई इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस ने मुलजिमों को छोड़ दिया है, आपने सुना कि मुलजिमों की गिरफ्तारी जो है वो इल्तवा में रखी गई है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती मुलजिमों से को शामिल तफ्तीश करके इब्तदाई बयान जो है उनके वो ले लिए गए हैं, और जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसकी रोशनी में जो है वो दोबारा से मुलजिमों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अगर अमल में लाई जानी होगी, फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर ये साबित हो जाता है कि कत्ल हुआ है, तो फिर जो मुलजिमों को दोबारा से हिरासत में लिया जाएगा और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुद्दई जो है वो अभी पुलिस की कारकर्दगी से और जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया उससे इंतहाई नाखुश दिखाई देते हैं। बहन भाइयों का आपस में जायदाद के तनाज़ा के ऊपर झगड़ा और लड़ाई वगैरह जो है वो समझ आती है और अक्सर ये रोनुमा भी होते रहते हैं। लेकिन इस केस के अंदर मुद्दइया जो है मरने वाली की बीवी, वो कहती है कि ससुर भी शामिल है और वो बाकायदा उस कत्ल के अंदर उसका किरदार है कि उसने अपने बेटे को पकड़ के रखा और बहन ने उस पर डंडों से वार किया। वालिदैन तो किसी भी हद तक अपने बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा ही हुआ है जैसा मुद्दइया बता रही है तो इसकी क्या मुहरिकात हो सकती है, सेम जो आपने पहले देखें? ये अभी तो ये एक स्टोरी है ना, और हम लोगों को ये स्टोरी आपको उसकी वाइफ ने जो है यूसुफ की वाइफ ने बताई है, उसमें बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। देखें, कभी भी अगर हम अपने सोशो डेमोग्राफिक और कल्चरल फैक्टर्स को देखें तो जो वालिदैन होते हैं वो बेटे के पास रहते हैं। इस केस में कोई ऐसी चीज़ भी सामने आ रही है कि जो वालिद थे वो बेटी के पास रहते थे, और ये बहुत कॉमन डायनामिक्स नहीं होते। अगर जिन लोगों के बच्चे मतलब मेल फैमिली मेम्बर्स हों या बेटे हों, तो इस केस में उसकी जाहिर है ज़्यादा एसोसिएशन बेटी के साथ लग रही है, वो उनके पास रहते भी थे, और इस वजह से शायद एक तरह का उन्होंने एक कर लिया कि वो वापस लेना चाह रहे हैं। जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं ना, तो एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। एग्रेशन के अंदर ये होता है कि आपकी कई दफ़ा ये होता है आपके केमिकल चेंजेस आते हैं, कई दफ़ा एकदम इम्पल्स कंट्रोल। इस केस में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने पर्पसफुली कोई प्लान किया हो इसको मारने का, वो एक अब्रप्ट सा एक वाक़या पेश जो आप आया। फरमा रही हैं उसके अंदर डॉक्टर साहब मुद्दइया कहती है कि उसकी तकरीबन 20 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद वो नहीं चाहते थे ससुराल वाले कि वो मेरे साथ शादी करे, पसंद की शादी थी और वो नहीं चाहती थी, और वो कहती है कि इन 20-22 सालों में वो मुसलसल ये कहते रहे कि इसको छोड़ दो, तलाक दे दो और तुम हमारे साथ रहो।
आपने यूसुफ के बुरसा की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि सगे बाप और बहन ने उसके ऊपर तशद्दुद किया और तशद्दुद जो था वो जानलेवा बना। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार ना करने के ऊपर उनके खदशात भी हैं और उनका गम व गुस्सा भी आपने सुना। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, उनसे इस केस के अंदर मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो हमारे माशरे में क्यों का रोनुमा हो रहे हैं। और खून सफ़ेद होना मुहावरतन तो सुना था, लेकिन अब देखने में भी, अमलन देखने में भी आ रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं, इसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हम बचपन में स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है खून सफ़ेद होना, अब अमलन ये चीज़ें देखने में आ रही हैं कि सगे बहन भाई माँ बाप के, यानी औलाद जो है अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम कर रही है और सगे बहन भाई जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे हैं। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है कि जायदाद के लालच, पैसे के लालच, लेन देन के तनाज़े पर खून सफ़ेद हो जाते हैं और अपने बहन भाई माँ बाप किसी की भी जान लेने से नहीं कतराते। क्या वजह है? देखें उमर, जो 4 बेसिक फैक्टर्स जो हैं वो क्राइम के, वो लव, लस्ट, लोथिंग और लूट है। अब इस केस के अंदर जो लग रहा है वो 4th फैक्टर लग रहा है कि जो प्रॉपर्टी दी थी भाई ने गुडविल के अंदर के, जब तक बहन रहना चाहती है रहे, और फादर क्योंकि बहन के पास रह रहे थे तो वो दोनों एक पार्टी बन गए हैं, जितनी हमें पिक्चर नज़र आ रही है। तो देखिए, जहाँ इकोनॉमिक डेप्रिविएशंस होंगी तो वहाँ पे जाहिर है एग्रेशन बढ़ेगा, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे, एकदम लोगों को गुस्सा आएगा और छोटे छोटे तनाज़ात पे या छोटी छोटी बातों के ऊपर, इकोनॉमिक रीजंस के ऊपर लड़ाइयाँ बढ़ती जाएंगी। अभी एक रिसेंटली क्राइम रिपोर्ट आई है जिसके अंदर आया है कि मर्डर्स जो हैं, स्पेसिफिकली जो आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स जो एक दूसरे का मर्डर करते हैं, उनकी शराब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये वर्ल्ड वाइड शराब बढ़ी है। और पैंडेमिक की सिचुएशन के बाद आपने देखा है कि लोगों की जो जॉब्स चली गई, कुछ लोगों की जो है आमदनी उतनी नहीं रहेगी, हम लोगों की जिस तरह की इन्फ्लेशन है हमारे मुल्क में, तो लोगों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इब्राहिम मैस्लो एक बहुत वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि बेसिक नीड्स जब पूरी नहीं होंगी तो अगली नीड्स की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो बेसिक नीड्स में फूड, शेल्टर, ये सारा कुछ आता है। तो इस केस में भी जब उनको ऐसा लगा कि हमारा शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस पर प्लानिंग भी कर रहे थे कि हम इस चीज़ को बेच दें, तो ये इस किस्म की कनाइविंग एटीट्यूड्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हमारे माशरे में, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखिए, बाहर का कोई बंदा आपकी किसी चीज़ या प्रॉपर्टी पे नज़र रखे, वो एक अंडरस्टैंडेबल टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर सका कोई रिश्तेदार हो, आपकी बहन हो और आपके वालिद हो, वो इस तरह करे तो ये बहुत ही इमोशनली भी शॉकिंग और इमोशनली भी डिस्टर्बिंग किस्म की खबर है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहन भाइयों का आपस में जायदाद के तनाज़ा के ऊपर झगड़ा और लड़ाई वगैरह जो है वो समझ आती है और अक्सर ये रोनुमा भी होते रहते हैं। लेकिन इस केस के अंदर मुद्दईया जो है मरने वाली की बीवी, वो कहती है कि ससुर भी शामिल है और वो बाकायदा उस कत्ल के अंदर उसका किरदार है कि उसने अपने बेटे को पकड़ के रखा और बहन ने उस पर डंडों से वार किया। वालिदैन तो किसी भी हद तक अपने बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा ही हुआ है जैसा मुद्दईया बता रही है तो इसकी क्या मुहरिकात हो सकती है, सेम जो आपने पहले बताया? देखें, ये अभी तो ये एक स्टोरी है ना, और हम लोगों को ये स्टोरी आपको उसकी वाइफ ने, जो है यूसुफ की वाइफ ने बताई है, उसमें बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। देखें, कभी भी अगर हम अपने सोशो डेमोग्राफिक और कल्चरल फैक्टर्स को देखें तो जो वालिदैन होते हैं वो बेटे के पास रहते हैं। इस केस में कोई ऐसी चीज़ भी सामने आ रही है कि जो वालिद थे वो बेटी के पास रहते थे, और ये बहुत कॉमन डायनामिक्स नहीं होते। अगर जिन लोगों के बच्चे मतलब मेल फैमिली मेम्बर्स हों या बेटे हों, तो इस केस में उसकी जाहिर है ज़्यादा एसोसिएशन बेटी के साथ लग रही है, वो उनके पास रहते भी थे और इस वजह से शायद एक तरह का उन्होंने एक कर लिया कि वो वापस लेना चाह रहे हैं। जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं ना, तो एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। एग्रेशन के अंदर ये होता है कि आपकी कई दफ़ा ये होता है, आपके केमिकल चेंजेस आते हैं, कई दफ़ा एकदम इम्पल्स कंट्रोल। इस केस में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने पर्पसफुली कोई प्लान किया हो इसको मारने का, वो एक अब्रप्ट सा एक वाक़या पेश जो आप आया। फरमा रही हैं उसके अंदर डॉक्टर साहब, मुद्दईया कहती है कि उसकी तकरीबन 20 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद वो नहीं चाहते थे ससुराल वाले कि वो मेरे साथ शादी करे, पसंद की शादी थी और वो नहीं चाहती थी, और वो कहती है कि इन 20-22 सालों में वो मुसलसल ये कहते रहे कि इसको छोड़ दो, तलाक दे दो और तुम हमारे साथ रहो, तो वह शादी की ज़रूरत नहीं है।
तो आप समझती हैं कि ये वाली चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना गुबार पैदा कर गई कि वो फिर? जी डेफिनेटली, देखिए कोई भी स्ट्रेसर होता है वो एकदम तो नहीं फुल ब्लोन उसके अंदर आता, आहिस्ता आहिस्ता डेली स्ट्रेसेस बढ़ते जाते हैं। आपकी छोटी छोटी अगर फीलिंग्स को लेट गो नहीं करते तो वो एक बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी एक वाक़ये से एग्रेशन नहीं बढ़ता, एक बंदा ऑलरेडी बहुत सी बातों के ऊपर परेशान होता है तो फिर वो इस किस्म के इकदाम करता है। तो इस फैमिली डायनामिक्स में भी कुछ इस किस्म की इम्बैलेंस्ड किस्म की डायनामिक्स नज़र आ रही हैं। और हमारे माशरे का एक ये अलमिया भी है कि जो शादी है वो पेरेंट्स की मर्ज़ी से होनी चाहिए, फैमिली की मर्ज़ी से होनी चाहिए, और जो लोग खुद अपनी पसंद की शादी, जो कि हमारा दीन भी इजाज़त देता है, उस पे करते हैं तो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल इन एक्सेप्टेंस भी है और बहुत सी अंडरलाइंग फैमिली डायनामिक्स जो कि इम्बैलेंस्ड हैं और हमें कह लें कि बहुत कॉमन भी हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। और हसद, नफ़रत और कदूरत और जेलसी और इस किस्म की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन इस किस्म के वाक़यात में होती है। कोई बहुत सीवियर ट्रॉमा जो है वो मौत का सबब बन सकता है? जैसे इसके अंदर अभी इब्तदाई तौर पे पुलिस कहती है कि इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि ये कत्ल है या वो बंदा जो है वो तबई मौत मर गया, लेकिन बुरसा कहते हैं कि क्योंकि तशद्दुद हुआ उसके ऊपर तो हो सकता है उसको हार्ट अटैक हो गया। येट अभी फोरेंसिक रिपोर्ट जमा आने की उनका इंतज़ार है, पुलिस को भी उसके अंदर कुछ माह लग जाते हैं। बहुत सीवियर ट्रॉमा अगर आपके बहुत करीबी बंदे से आपको मिले तो वो मौत की वजह जी डेफिनेटली। देखिए ये MI का केस है, अभी जैसे थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन है कि ये फर्स्ट हार्ट अटैक है, तो एक्यूट MI में हार्ट अटैक ऐसे डिक्लेयर्ड नहीं है। अच्छा, लेकिन वो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो उसके स्पेसिमेंस भेजे हुए हैं, उसके बॉडी सैंपल्स भेजे हुए, उनका इंतजार कर रहे हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ जाए। वो तकरीबन 2-3 माह लग जाते हैं। फिजिकल ट्रॉमा तो है ना, हिट किया ब्रेन के किसी एरिया पे, ऐसी जगह हिट किया है जो कि जाहिर है वो इतना अनकॉन्शियस हो गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और जो ट्रॉमा आपके बहुत करीबी लोगों की वजह से होता है, जिनके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिनसे आपका एक कह लें कि बहुत प्यार का रिश्ता होता है, वो एक नफ्सियाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रेसर बन जाता है। वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। किसी आउटसाइडर की वजह से कोई चीज़ हो वो इतना ट्रॉमेटिक नहीं होती जितनी कि आपके क्लोज लव वंस की तरफ से कुछ इस किस्म का वाक़या हो। तो ये बोथ वेज हो सकता है। फिजिकल ट्रॉमा तो था ही क्योंकि हिट किया उसको, और नफ्सियाती तौर पे भी कितना ट्रॉमेटिक था ये तो अब रिपोर्ट बताएगी कि अगर ये एक्यूट MI है या हार्ट अटैक हुआ है तो कई दफ़ा बहुत सीवियर स्ट्रेस जो है वो हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफीक साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। माहिर कानून इस तरह के मुकदमात और केसेस के बारे में क्या राय रखते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर 3 ज़रबात का जिक्र है, एक हेड पे, दूसरी हंस की हड्डी पे और तीसरी भी गालबन सारियाँ छाती के ऊपर, सीने के ऊपर बताई जाती है। पुलिस अगर वो डंडा जो थापा इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर खून डेफिनेटली लगा होगा, उसको बरामद कर लेती है और फ्रांसिक तब तक नहीं आता। जैसे मुलजिम मुद्दईयों का कहना है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी इल्तवा में डाल के उनको थाने से छोड़ दिया गया है। अगर एक कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है और नॉमिनेटेड मुकदमा दर्ज होता है तो उसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फ्रांसिक रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके अंदर मुलजिमों का छोड़ने का एक्ट ठीक है, क्योंकि उस पुलिस के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लग रहे हैं कि शायद उन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत लेके छोड़ी है। तो उसमें क्या कानून क्या कहता है? देखिए, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँगा कि एक कत्ल के मुकदमे में पुलिस, ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास अख्तियार नहीं है या पुलिस ने अगर कोई भी FIR हुई है तो फ़ौरन गिरफ्तार करना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हालिया जजमेंट्स में बहुत वाज़ेह करने की कोशिश की है कि कोई भी शख्स आकर अगर FIR दर्ज करवाता है इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जाते ही मुलजमान को गिरफ्तार कर ले। पहले पुलिस अपनी तफ्तीश में प्राइमा फेशे ये देखेगी कि वाकई जो कहानी बताई गई, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, इसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। लेकिन मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ क्योंकि कल रात में किसी और केस के सिलसिले में एक पुलिस स्टेशन में जाना हुआ तो हवालात में एक 406 का कैदी, अमानत में ख़यानत का कैदी जो है वो बंद था। तो पुलिस इतने, और उसके ऊपर उससे मेरी जब बात हुई तो उसने कहा जी सिर्फ 2.5 लाख रुपए का मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। 2.5 लाख रुपए के केसेस में भी पुलिस गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देती है, और कत्ल के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार ना करना बहुत हैरान कुन बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कानूनन ऐसा नहीं हो सकता और पुलिस ने लाजमी उनको गिरफ्तार करना है। लेकिन इसमें फिर कुछ चीज़ें देखने वाली होंगी।
माहिर कानून शाहजहां खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मुद्दई कहते हैं कि पुलिस का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर मरने की वजह जो है वो क्लियर नहीं है और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को बॉडी स्पेसिमेन भेजे गए हैं और उस रिपोर्ट के बाद ये हतमी तौर पे बताया जा सकता है कि वजह मौत क्या है और आया ये बंदा कत्ल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर दूसरा एस्पेक्ट मुद्दइयों का ये कहना है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने उसके सर पे और गर्दन के ऊपर ज़रबे भी लगाई जिसकी वजह से मौत वाक़ई हुई है। इसके अंदर कानून क्या कहता है और पुलिस ने उनको शामिल तफ्तीश करने के बाद जो छोड़ दिया, उनकी गिरफ्तारी इल्तवा में रख दी है, उसकी क्या कानूनी हैसियत है, ये जानते हैं खान साहब से। हाँ जी, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक बंदा मरता है लड़ाई के दौरान, उसका पोस्टमार्टम होता है और रिपोर्ट ये आती है कि उसके सर पे और गर्दन पे ब्लंट ज़रबे हैं, चोटें हैं, ब्लंटली उसको अटैक किया गया है। उसके बाद कोर्स ऑफ लॉ क्या होगा? कानून क्या कहता है कि ऐसी मौत के बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो पुलिस ने फॉलो करना? देखिए, सबसे पहले अगर हम अपनी बात को सिर्फ एफआईआर की कहानी तक महदूद कर लें जो मुद्दई ने आके पुलिस को बयान किया, अगर हम सिर्फ उसकी हद तक कर लें तो उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं देखने के लिए। पहली ये कि जाए वक़ुआ क्या है और दूसरी बात यह है कि वो हथियार जिसको हम ऑफेंस, वेपन ऑफ ऑफेंस कहते हैं, वो क्या है। अगर इसके अंदर देखें तो सबसे पहले जाए वक़ुआ ऐसा नहीं है कि मुल्ज़मान चल कर आए हों, बल्कि मकतूल गया जिस जगह पर, वहाँ मुल्ज़मान पहले से मौजूद थे, उनके घर गया। अब ये अलहदा बात है कि वो घर किसका था किसका नहीं, बाद में उसका फैसला हो जाएगा, मगर वो मकतूल चल कर गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई प्री मेडिटेशन तो उसमें नहीं थी, कोई सोची समझी साजिश कत्ल की उस दिन नहीं थी। ये एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मालूम होता है कि दो पार्टीज़ के बीच में मौके पर कोई तू तकार हुई, झगड़ा हुआ और उसमें गुस्से में आकर जो मुल्जिमा है, जो उसकी बहन है मकतूल की, जिस पर इल्ज़ाम है, उसने एक लकड़ी का थापा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया एफआईआर में, वो उसके सर में दे के मारा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपके सवाल को एड्रेस करके फिर मैं इस कहानी पे वापस साथ आ जाता हूँ। पहला बात यह है कि पुलिस क्या करेगी? पुलिस का काम तफ्तीश करना है। पुलिस अब इसमें तफ्तीश ये करे कि आया जो ये कहानी एफआईआर के अंदर बयान की गई है ये दुरुस्त भी है या नहीं है। अगर तो ये सारी बातें दुरुस्त साबित होती हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर मुल्ज़िमा ने वाकई ही कत्ल किया। लेकिन सवाल ये है कि इस कहानी में जिसमें एक सॉलिटरी ब्लो है, एक सिंगल ब्लो है जिसके साथ डेथ हुई, इसी महीने एक जजमेंट रिपोर्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर अदालत ने कहा कि देखिए ऐसे मुकदमात कि जिनके अंदर मकतूल के ऊपर सिर्फ एक ज़र्ब एट द स्पर ऑफ द मोमेंट अगर हुई, कोई सोचा समझी साजिश नहीं थी, और उसके बाद जब वो ज़ख्मी होकर गिर गया या बेहोश हो गया, तो मुल्जिम के पास ये मौका होता है कि अगर वो स्पर ऑफ द मोमेंट की बजाय सोचे समझे तौर पे कत्ल कर रहा है तो वो मज़ीद वार करेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एफआईआर की कहानी रखें अपने सामने तो दूसरे वार का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही वार था, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट था, और जाए वक़ुआ मकतूल का घर या जगह नहीं थी, बल्कि मकतूल खुद कहीं गया जहां मुल्जिम पहले से वैसे ही मौजूद थे अपने तौर पर। तो इसके अंदर एडवांटेज मुल्जिम को ये मिलता है उस जजमेंट के तहत कि वो 302C में फॉल कर जाएगा। सो सजाए मौत की बजाय कोई सज़ा 25 साल तक की मैक्सिमम उसको हो सकती है। सो उस कानून के अंदर, उस जजमेंट के अंदर 17 साल दे दी गई थी। सो इस तरह के फ़ायदे होंगे और पुलिस का रोल वही रहेगा कि उसने ये साबित करना है कि जो तफ्तीश है और ये कहानी है वो दुरुस्त है। शाहजहां साहब, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर 3 ज़रबात का जिक्र है, एक हेड पे, दूसरी हंस की हड्डी पे और तीसरी भी गालबन सारियाँ छाती के ऊपर, सीने के ऊपर बताई जाती है। पुलिस अगर वो डंडा जो थापा इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर खून डेफिनेटली लगा होगा, उसको बरामद कर लेती है और फ्रांसिक तब तक नहीं आता। जैसे मुल्जिम, मुद्दइयों का कहना है कि मुल्जिमों की गिरफ्तारी इल्तवा में डाल के उनको थाने से छोड़ दिया गया है। अगर एक कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है और नॉमिनेटेड मुकदमा दर्ज होता है तो उसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फ्रांसिक रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके अंदर मुल्जिमों का छोड़ने का एक्ट ठीक है, क्योंकि उस पुलिस के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लग रहे हैं कि शायद उन्होंने
मुबैना तौर पे रिश्वत लेके छोड़ी है, तो उसमें क्या कानून क्या कहता है? देखिए, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँगा कि एक कत्ल के मुकदमे में पुलिस ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास अख्तियार नहीं है या पुलिस ने अगर कोई भी FIR हुई है तो फ़ौरन गिरफ्तार करना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हालिया जजमेंट्स में बहुत वाज़ेह करने की कोशिश की है कि कोई भी शख्स आकर अगर FIR दर्ज करवाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जाते ही मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर ले। पहले पुलिस अपनी तफ्तीश में प्राइमा फेशे ये देखेगी कि वाकई जो कहानी बताई गई, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, इसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। लेकिन मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ क्योंकि कल रात में किसी और केस के सिलसिले में एक पुलिस स्टेशन में जाना हुआ, तो हवालात में एक 406 का कैदी, अमानत में ख़यानत का कैदी जो है वो बंद था। तो पुलिस इतने, और उसके ऊपर उससे मेरी जब बात हुई तो उसने कहा जी सिर्फ 2.5 लाख रुपए का मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। 2.5 लाख रुपए के केसेस में भी पुलिस गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देती है, और कत्ल के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार ना करना बहुत हैरान कुन बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कानूनन ऐसा नहीं हो सकता और पुलिस ने लाजमी उनको गिरफ्तार करना है। लेकिन इसमें फिर कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि क्या उनको छोड़ने के बाद क्या वो उसी तरह शामिल तफ्तीश हैं, पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस ने जिस चीज़ के ऊपर जो वेपन इस्तेमाल हुआ या जो लकड़ी का इसमें वो इस्तेमाल हुआ वो कत्ल के अंदर, क्या पुलिस ने वो रिकवर कर लिया है या नहीं कर लिया। क्योंकि गवाहान को जैसे बेल है, जब अदालत कोई मुल्जिम को छोड़ती है तो वो कुछ चीज़ें देखती है कि क्या ये डेस्परेट और हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, या फिर अगर हम इनको छोड़ दें तो ये एविडेंस को किसी तरह मैनिपुलेट या टेम्पर करने की सलाहियत रखते हैं, या ये करेंगे, या इस मुकदमे के अंदर जैसे FIR में जिक्र है कि जी उन्होंने आवाज़ दी तो 2 लोग और भी आ गए, तो क्या उन गवाहों को मैनिपुलेट कर सकते हैं मुल्ज़मान। अगर तो ये समझा जाए कि वो नहीं करेंगे तो फिर उनको बेल भी दे दी जाती है। इसी तरह अगर मैं इसी असूल को लेकर पुलिस की तरफ चलूँ तो फिर इस मुकदमे के अंदर जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, वेपन या ऑफेंस का जो चीज़ इस्तेमाल की गई वो रिकवर नहीं होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस को छोड़ना चाहिए, और ना ही पुलिस अमूमन छोड़ती है। ये अपनी नौयत का एक मुझे वाक़या है। लास्टली ये बताइएगा कि अगर मुद्दई कहते हैं कि ये कत्ल है और अभी मुद्दइयों का ये खदशा है कि पुलिस इस चीज़ के ऊपर जोर दे रही है कि ये कत्ल नहीं है, ये तबई मौत है, वहाँ पे बंदे का जाना, उसके ऊपर अटैक होना और उसके बाद उसका मर जाना, इसके अंदर अगर ये चीज़ आ जाती है कि हार्ट अटैक हो गया लेकिन उसके ऊपर अटैक भी हुआ जी, तो उसके अंदर क्या होता है? देखिए, मैं आपको इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर बरतानिया के कानून में ले जाता हूँ। एक केस आया R वर्सेस वाइट इंग्लैंड की कोर्ट्स में। उसके अंदर हुआ ये था कि एक बच्चा था वाइट जो अपनी वालदा से बड़ा तंग था, तो उसने एक दिन सोचा क्यों ना मैं अपनी वालदा को, जो वो दूध पीती हैं रात को, उसमें जहर मिला के कत्ल कर दूँ। अब उसने जब जहर मिला के दूध दे दिया, वालदा ने वो दूध पिया और वो सो गई, तो सुबह पता चला कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। अब सवाल अदालत के सामने रखा गया, देखिए मौत की वजह जहर है या मौत की वजह हार्ट अटैक है। तो सवाल ये था कि अगर तो हार्ट अटैक नतीजा है उस जहरीला दूध पीने का, तो ये चेन ऑफ कॉजेशन हम इसको बोलते हैं, ये मुकम्मल होती है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा ही कातिल है। लेकिन अगर जहरीला दूध माँ ने पिया लेकिन जो हार्ट अटैक है उसकी ओल्ड एज की वजह से हुआ, उसका जहर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये मर्डर नहीं है। तो इसी तरह इस केस में भी लाजमी नहीं है कि अगर हार्ट अटैक हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो ज़र्ब थी वो इस कत्ल की वजह नहीं थी। फिर देखने की बात, फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद भी देखने की चीज़ ये होगी और साबित करने की कि वो जो चोट थी मुल्जिमा की ब्लो से, वो इतनी शिद्दत की थी कि उस शिद्दत, दर्द की शिद्दत की वजह से अगर तो मकतूल का हार्ट अटैक हुआ और ये लिंक हो गया तो फिर मुल्जिमा ही कातिल है। लेकिन अगर ये साबित होता है कि ब्लो मुल्जिमा ने ज़रूर दी और वो जानलेवा हो सकती थी, लेकिन जो हार्ट अटैक हुआ है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है फ्रॉम दैट ब्लो, तो फिर मुल्जिमा शायद कत्ल आमद में 302 में रियायत के मुस्तहक हो कि कोर्ट उसको फिर फांसी की सज़ा ना दे, मगर फिर शायद सज़ा काफ़ी कम कर दे। तो ये इस तरह के मुकदमात में चेन ऑफ कॉजेशन हम इसको जो बोलते हैं अपनी टेक्निकल टर्म में, ये देखना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक इंडिपेंडेंट था या उसका ब्लो के साथ ताल्लुक था। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून शाहजहान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुद्दइयों की आपने गुफ्तगू सुनी, वो अपने मरने वाले जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनकी मौत को कत्ल डिक्लेयर करते हैं। पुलिस ने जो नॉमिनेटेड मुल्जिम हैं उनको शामिल तफ्तीश करने के बाद उनकी गिरफ्तारी इल्तवा में डाल दी और उनको थाने से जाने की इजाज़त दे दी है, जिसकी वजह से मकतूल की फैमिली जो है वो सरापा एहतजाज है और फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है कि उसके अंदर जो नतीजा आएगा उसके मुताबिक जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन जैसे आपने माहिर कानून की गुफ्तगू सुनी कि पुलिस
मामूली से मुकदमे में भी मुलजमान को जाने की इजाज़त नहीं देती, तो यहाँ पे कत्ल का मामला और वो भी उनके पेटी भाइयों का, लेकिन उसके बावजूद भी जाने की इजाज़त दी है, जो हैरानकुन है। और उन्होंने बाकायदा इस कानून को समझाने की भी कोशिश की है कि अगर ये ज़रबात की वजह से मौत हुई है तो कत्ल है, और अगर ज़रबात की वजह से मौत नहीं हुई लेकिन ज़रबात लगी हुई हैं जिस्म पे, तो फिर कत्ल अमद है और उसके अंदर सज़ा जो है वो कुछ कम हो जाएगी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ना सिर्फ मुद्दइयों को बल्कि पुलिस को भी इस रिपोर्ट का इंतजार है कि रिपोर्ट आने के बाद जो कोर्ट्स ऑफ लॉ है उसको मुकम्मल किया जाएगा। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।